Our today's topic is physical assessment. Then what is physical assessment? Physical assessment क्या है? It is a systematic collection of objective information that is directly observed or is elicited through examination technique. Physical examination में हम different एग्जामिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं. उस टेक्निक में जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसको एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एग्जामिनेशन. सो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वंस सेंसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन एरिया बीइंग मैनिपुलेटेड और ऑब्जर्व्ड. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम अपनी डिफरेंट सेंसेस का यूज करते हैं, सच एज आईज, नोज, टच, स्किन का यूज करेंगे जिससे हम पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे. देन कॉम्पिटेंसी स्किल नीडेड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन. व्हाट स्किल आर नीडेड फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन? It include medical personnel working in hospital must be medically fit and he or she should have intact senses. That is hearing, viewing, touching, tasting and smelling. So these senses are used in the physical examination. Then thoroughness. Physical examination must be done systematically and thoroughly, है ना. It should not be done in shortcut. So you should do the physical examination in a systematic way. After that knowledge, the examiner should have complete knowledge regarding the examination and the examiner should be confident. The examiner should have up-to-date knowledge as well as skill in examining client as well as detecting the problem. Then concentration of the health personnel. The person is having full concentration in the examination. Then accurate technique. The health personnel should use the correct or accurate technique to collect the information and follow all steps of the procedure in a systematic way. After that, next point is objectivity. Avoid personal judgment. You should be done the examination properly. Don't use your judgment in physical examination. There should be no bias. कोई partiality नहीं होनी चाहिए. Clues while examining the client, है ना. You should not include your idea in the physical examination. Make inferences based upon the finding. ठीक है, जो पेशेंट की फाइंडिंग होगी उसी के ऊपर आपने कंक्लूजन बनाना है, ना कि अपनी आपने जो जजमेंट है वो उसमें डालनी है. आफ्टर दैट द टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. मेनली 4 टेक्निक्स आर यूज्ड. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द टेक्निक: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड auscultation. Then these are the 4 steps in the physical examination. Inspection means inspect or visualize with the eyes. ठीक है, you shouldn't touch the body part of the patient. Only you have to visualize that part. After that, second step is palpation. Palpation is done with the help of the finger tips or finger pads. After that, percussion is the tapping with finger. Shown in this figure that one hand is placed on the body part and the other hand is used to tap the finger. It is used to hear the body sound. And 4th technique is auscultation. Auscultation should be done with the help of stethoscope to hear the sound. Various sounds such as lung sound, abdominal sound. So these are the 4 steps in the physical examination: inspection, palpation, percussion, auscultation. When we examine the organ, firstly we have to do the inspection, then palpation, percussion or auscultation, except in case of abdomen. Here it is given the sequence: inspection, palpation, percussion or auscultation in all parts of the body, but except in abdomen the sequence is: firstly we have to do the inspection, after that auscultation, after that percussion, after that palpation.
ठीक है। एब्डोमेन में क्यों ऑस्कल्टेशन पहले करते हैं और पाल्पेशन बाद में करते हैं? बिकॉज इफ वी डू पाल्पेशन फर्स्ट इट कैन ऑल्टर द बाउल साउंड। ठीक है, अगर हम पाल्पेशन पहले करेंगे तो ये बाउल साउंड को ऑल्टर कर देगा और जो साउंड होंगे वो हमें एबनॉर्मल सुनाई देंगे। दैट्स व्हाई द ऑस्कल्टेशन इज डन फर्स्टली, आफ्टर दैट परकशन, आफ्टर दैट पाल्पेशन। ठीक है, यू शुड लर्न दिस सीक्वेंस of physical examination. It might be asked in a competitive exam. After that we will discuss step by step. Then first step is inspection. It is the visual examination of the body. Inspection मतलब visualize with eyes. तो take time to observe with eyes, ear और नोज। इंस्पेक्शन में हम 3 सेंसेस का यूज करेंगे, आईज, ईयर और नोज का। आईज का यूज क्यों करेंगे? टू ऑब्जर्व कलर, शेप, साइज, सिमेट्री, पोजीशन और मूवमेंट्स। ठीक है, ईयर्स का यूज क्यों करेंगे? साउंड हियर करने के लिए। एंड नोज फॉर एनी टाइप ऑफ abnormal order from the skin, breath or wound. But during inspection there should be good lighting. तो जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द क्लाइंट फॉर, जनरली जब क्लाइंट हमारे पास आएगा तो हमने उसको किन किन चीज़ों के लिए इंस्पेक्ट करना है, क्या चीज़ें हमने उसमें देखनी है अपने आईज के थ्रू। देन ओवरऑल अपीयरेंस चेक करेंगे। ओवरऑल अपीयरेंस में क्या आ जाएगा? कलर, टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स क्या होता है? टेक्सचर मीन्स द वे दैट समथिंग फील व्हेन यू टच इट। देन मोबिलिटी चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे। आफ्टर दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की इज द क्लाइंट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस। आफ्टर दैट फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या चेक करेंगे? एंग्शियस, इज द पर्सन एंग्री, एंग्शियस, discomfort, comfortable, alert or nervous. Then body build, is the person thin, fatty or moderate. Then grooming कि उसकी dressing sense कैसी है, proper grooming है और improper है. And personal hygiene. This should be done in inspection step. After that next step is palpation. It is the use of tactile sensation. Tactile का मतलब क्या होता है? Tactile means touch. ठीक है, तो इसमें हम टच का यूज करेंगे। तो इट इज अ फीलिंग ऑफ बॉडी और पार्ट विद द हैंड टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन, सच एज कि अगर हम एब्डोमेन चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, फिर परकशन, फिर हम पाल्पेशन कर रहे हैं ना। तो पाल्पेशन में क्या करेंगे एब्डोमेन में हम? ठीक है, वी कैन यूज अवर फिंगर्स टू डू द पाल्पेशन। ठीक है, इसमें हम किसी भी ऑर्गन का, जैसे लीवर है, लीवर का साइज चेक करने के लिए हम पाल्पेट कर सकते हैं, स्प्लीन को चेक करने के लिए पाल्पेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट डोर्सम, सरफेस ऑफ द हैंड। डोर्सम हो गया बैक सरफेस ऑफ द हैंड एंड फिंगर। दीज आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर, है ना। अगर जैसे हमने फोरहेड पे टेम्परेचर चेक करना है तो हम अपने हाथ से कैसे करेंगे? डोर्सम सरफेस से, मतलब जो बैक साइड ऑफ हैंड है उससे हम टेम्परेचर चेक करेंगे। आफ्टर दैट द पाल्मर सरफेस। पाल्मर मतलब जो फ्रंट सरफेस है। पाल्मर सरफेस ऑफ फिंगर एंड फिंगर पैड आर यूज फॉर असेसमेंट, है ना। जो पाल्पेशन करते हैं इट इज डन विद द फिंगर पैड, नॉट विद द फिंगर टिप्स। ठीक है, टिप्स से नहीं करना है, फिंगर पैड्स का यूज करना है। एंड फिंगर पैड आर यूज टू असेस द टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ऑर्गन को टच करते हैं तो उसका फील कैसा होता है ना, कि इज इट मॉइस्ट, हाउ डज इट फील। To check the shape, any type of fluid, size, consistency और pulsation, pulse check करने के लिए भी use कर सकते हैं। Then palpation, 1 or 2 handed technique. You can palpate either with 1 hand or with 2 hand. Use finger pad, not the tips, है ना। जैसे मैंने बताया कि फिंगर
पैड का यूज करना है, फिंगर टिप्स का यूज नहीं करना है। वॉच फेशियल एक्सप्रेशन, जब पाल्पेशन करते हैं, पाल्पेशन के साथ साथ पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन भी चेक करने हैं कि पेशेंट को कई बार क्या होता है, पेन होता है, तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन भी चेक करने हैं। पाल्पेट इन 3 phases, लाइट, डीप और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लाइट पाल्पेशन कब करेंगे? फॉर टेंडरनेस, और it is used for the to check the abnormalities of the surface। जो लाइट पाल्पेशन है, अगर सरफेस में सुपरफिशियल कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको चेक करने के लिए हम लाइट पाल्पेशन करते हैं। एंड इन दिस यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर डाउन इज प्रेस्ड। 1 से 2 सेंटीमीटर तक ही हम नीचे को प्रेस करेंगे फिंगर टिप से, पैड की हेल्प से, फिंगर पैड्स की हेल्प से। आफ्टर दैट डीप पाल्पेशन ऑफ ऑर्गन्स टू डिटेक्ट masses और टेंडरनेस। इन डीप पाल्पेशन internal organs are felt such as liver, spleen, etc. है ना। We can check the shape of these organ by pressing down up to 4 to 5 centimeter। डीप पाल्पेशन में 4 to 5 सेंटीमीटर हम प्रेस करेंगे और लाइट पाल्पेशन में 1 to 2 सेंटीमीटर हम प्रेस करते हैं। आफ्टर दैट पाल्पेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्यों पाल्पेट करेंगे? टू फील फॉर शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गन विथ ब्रीदिंग, है ना, कि ब्रीदिंग के साथ साथ ऑर्गन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम रेस्पिरेशन के टाइम पे पाल्पेशन करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज परकशन। परकशन मीन्स बाय यूजिंग टैपिंग, है ना, एग्जामिनेशन बाय टैपिंग। तो इट इज द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर on the body as shown in this diagram। ठीक है, in this one hand is placed on the body surface and the other hand middle finger is used to tapping the another hand middle finger, है ना। इसमें जो साउंड हियर होते हैं, किस टाइप का साउंड हियर हो रहा है वो चेक करते हैं। तो इट इज द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर्स ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट इज प्रोड्यूस। मेनली इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमने सुनना है कि किस टाइप का साउंड, टैपिंग के बाद किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। द साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग एक्शन ओवर बॉडी टिश्यू इज नोन एज परकशन टोन। जो साउंड प्रोड्यूस होगा टैपिंग की वजह से उसको क्या बोलेंगे? परकशन टोन बोलेंगे या परकशन नोट्स बोलेंगे। परकशन प्रोड्यूसेस डिफरेंट नोट्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होंगे सच एज डल, रेजोनेंट, फ्लैट और टिम्पैनिक साउंड। Then it is used to outline the size of the organ such as bladder or liver. Percussion is also used to determine if structure is air filled, fluid filled और solid, है ना, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है या एम्प्टी स्ट्रक्चर है या मास है, तो उससे डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा। That's next slide. The degree to which sound propagate is called as the resonance. Percussion produces characteristic tone. क्या क्या साउंड प्रोड्यूस होगा? टिम्पैनिक, हाइपर रेजोनेंट, रेजोनेंट, डल एंड फ्लैट। तो जो रेजोनेंट साउंड है इट इज नॉर्मल लंग साउंड। दीज आर द रेजोनेंट साउंड। जो नॉर्मल लंग साउंड होते हैं एम्प्टी स्पेसेस से जो प्रोड्यूस होगा। आफ्टर दैट हाइपर रेजोनेंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ओवर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू। जब लंग टिश्यू ज्यादा इन्फ्लेट कर जाएंगे, ज्यादा ओपन हो जाएंगे, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज हाइपर रेजोनेंट। आफ्टर दैट फ्लैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल एंड द bone, and dull sound is produced by these are high pitch sound produced by the solid tissue such as liver, spleen etc. है ना, ये solid tissue है, masses है, इससे जो sound produce होगा that is dull sound। टिम्पैनी मतलब जो empty spaces है उनसे कैसा sound produce होगा? tympanic sound। very low pitch sound है, so often in the abdomen, क्योंकि जो abdominal cavity है कैसी है, एम्प्टी है, ऑर्गन्स तो उसमें प्रेजेंट है बट एम्प्टी कैविटी है ना, तो वहां से जो प्रोड्यूस होगा दैट इज टिम्पैनिक साउंड इन एरिया वेयर एयर डोमिनेट्स।
क्लियर हो गया। तो जो परकशन है, परकशन में मेनली टैपिंग का यूज किया जाता है, फिंगर टैपिंग करेंगे, ठीक है। फिंगर टैपिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमने अच्छे से सुनना है कि किस टाइप का साउंड हियर हो रहा है। तो इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट परकशन और इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन सिंपल हम एक हाथ से करेंगे, टैपिंग पेशेंट बॉडी डायरेक्टली विद द डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर। इसमें हम सिर्फ अपने एक हाथ का यूज करेंगे और डायरेक्टली पेशेंट के ऑर्गन को टैप करेंगे। एंड इनडायरेक्ट परकशन में यूजिंग आइदर द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर और जस्ट द मिडल फिंगर ऑफ वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट and the other hand is used for the tapping. The middle finger of one hand is tapped on the middle finger of the placed hand, then touch patient only with the finger that is being tapped. सिर्फ फिंगर से ही टैपिंग करना है, पेशेंट की बॉडी को एक्सेसिव टच नहीं करना है, जिस वजह से आपको साउंड अच्छे से नहीं सुनाई देगा। तो एक हाथ को पेशेंट की बॉडी के ऊपर प्लेस कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट यूज middle finger of another hand to strike on the middle finger of that hand. Another method क्या है कि tap middle finger with the rubber hat of a reflex hammer. जो हैमर होता है उसके साथ आपने मिडल फिंगर के ऊपर टैपिंग करनी है और साउंड हियर करना है। तो these are the two method of percussion, direct percussion और indirect percussion. After that, fourth step is auscultation. Auscultation मतलब listening the sound produced by the body with the help of either stethoscope or with directly. तो it is mainly of two type, direct auscultation और indirect auscultation. Direct auscultation क्या होता है, जब हम साउंड विदाउट स्टेथोस्कोप सुनते हैं, डायरेक्टली हमें हियर होंगे तो इट इज direct auscultation, but when we hear the sound with the help of stethoscope, then it is called as the indirect auscultation. So these are the parts of stethoscope. These are ear tips, these are binaurals, these are binaurals, these are tubing, latex tubing, and this is the diaphragm or this is bell. This part is called as the bell. After that, heart, blood vessel and are ausculted for circulation of the blood, है ना। जो हार्ट साउंड है, पल्स चेक करने के लिए भी क्या है, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ब्लड वेसल के सर्कुलेशन के लिए भी हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। लंग्स आर ऑस्कल्टेटेड फॉर ब्रीथ साउंड, लंग्स को ब्रीथ साउंड चेक करने के लिए हम ऑस्कल्ट करेंगे। एब्डोमेन इज ऑस्कल्टेटेड फॉर मूवमेंट ऑफ जीआई कंटेंट, है ना। जो बाउल साउंड है उनको चेक करने के लिए हम एब्डोमेन को ऑस्कल्टेट करेंगे। और जब भी ऑस्कल्टेट करते हैं देयर शुड बी, द रूम शुड बी क्वाइट, ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी नॉइस नहीं होना चाहिए। देन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर असेस, मेनली कौन कौन से हैं, जब कोई हम साउंड चेक करेंगे तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पिच, लाउडनेस, क्वालिटी और ड्यूरेशन। पिच माइट बी हाई, मीडियम और लो, loudness ranging from soft to loud, quality booming, hollow, dull, drum like, or duration short, medium or long. Here it is